رحمت کرے۔ شاہ عظیم کی شاندار فتحیابی کے موقع پر نجات کا ترنم پھونکا جائے، دنیا کے تمام لوگ خوشی سے آواز بلند کرے، زمین نور کی کرنوں سے منور ہو کر خوشی کرے اور ابدی بادشاہ کی شان میں روشن ہو کر محسوس کرے کہ اب تاریکی دور ہو گئی ہے۔ خدا کی پاک کلیسیا بھی خوش و خرم ہے، کیونکہ نور کی چمک اس کے چوگرد ہے، بلکہ اس مقام میں بھی مومنوں کے نعرے گونج اٹھیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے کہ ہم گرم جوشی کے ساتھ خدا اور اس کے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کی بلند آوازوں کے ساتھ تعریف کریں۔ خدا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بلند آوازوں کے ساتھ تعریف کریں۔ اس نے اپنا خون بہا کر منہ سے گناہ کا اثر مٹا ڈالا۔ ہم آج پاشکا کی عید مناتے ہیں، جب وہ وفادار برے کی طرح قربان ہوا، جس کے خون سے مومنوں کی دہلیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آج وہ رات ہے جب چنی ہوئی قوم نے غلامی کی جگہ آزادی پائی اور سوکھے پاؤں بحیرہ کلثم کو پار کیا، بلکہ وہ رات ہے جس میں روشن مینار نے گناہ کے اندھیرے کو دور کر دیا۔ ہاں، وہ رات جو دنیا بھر کے تمام ایمانداروں کو زمانے کی ناپاکی اور خطا کاروں کو شرمندگی سے بچا کر دوبارہ فضل دلاتی ہے اور مقدسوں کے ساتھ میراث میں شریک بنا دیتی ہے۔ تجھ شفیق خدا کی مہربانی عجیب اور تیری محبت کا اظہار بیان سے باہر ہے کہ غلاموں کو بچانے کے لیے تو نے بیٹے کو موت کے حوالے کر دیا۔ لازم تھا کہ ہمارے باپ آدم سے گناہ ہو جو مسیح کے مرنے سے مٹا ڈالا جائے۔ ہم اس رسول کو مبارک کہہ سکتے ہیں کہ جو اس قدر عظیم قربانی دینے والے کو ہمارے پاس لایا۔ بس اے قدوس باپ، اس رات کی مہربانی کی خاطر روشنی کا یہ نذرانہ قبول کر، جسے پاک کلیسیا سنجیدگی کے ساتھ اپنے قدموں کے ہاتھ سے تیرے حضور پیش کرتی ہے۔ یہ شمع جو ہم تیرے نام کے جلال کے لیے مخصوص کر چکے ہیں، لگاتار جلتی رہے جب تک اس رات کی تاریکی دور نہ ہو جائے۔ یہ پسندیدہ خوشبو کی طرح تجھے مقبول ہو کر آسمان پر چمکنے والے ستاروں کے ساتھ اپنی روشنی ملاتی رہے اور صبح کا ستارہ بھی سے جلتا ہوا پائے۔ وہ ستارہ جو غروب نہیں ہوتا، یعنی مسیح ہمارا خداوند تیرا پیارا بیٹا، جو مردوں میں سے جی اٹھ کر بنی نوع انسان پر اپنا مبارک نور چمکاتا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ شب بیداری کے اقدس موقع پر ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا پہلا باب پہلی آیت سے اور دوسرے باب کی دوسری آیت تک پڑھیں گے۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو، اور روشنی ہوئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور رات کو رات کہا۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی پہلا دن۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، جو پانیوں کو پانیوں سے جدا کرے۔ تب خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانیوں کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی دوسرا دن۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور مجتمع پانی کو سمندر کہا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا زمین سبز نباتات
اور بیجدار پودوں اور پھل دینے والے میوادار درختوں کو ان کی اپنی اپنی قسم کے مطابق اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھے اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے سبز نباتات اور بیجدار پودوں اور پھل دینے والے میوادار درختوں کو ان کی اپنی اپنے قسم کے مطابق اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی تیسرا دن۔ اور خدا نے کہا آسمان کی فضا میں نیر ہو کہ دن کو رات سے جدا کرے، اور وہ زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کی نشان ہو، اور وہ آسمان کی فضا میں چمکے کہ زمین کو روشن کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ پس خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر جو دن پر حکومت کرے، اور ایک نیر اصغر جو رات پر حکومت کرے، اور ستارے بھی۔ اور خدا نے ان کو آسمان کی فضا میں رکھا کہ زمین کو روشن کرے، اور دن پر اور رات پر حکومت کرے، اور روشنی کو تاریکی سے جدا کرے۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چوتھا دن۔ اور خدا نے کہا کہ پانی رینگنے والے جانداروں کو پیدا کرے، اور پرندوں کو جو زمین کے اوپر آسمان کی فضا میں اڑے۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جاندار اور ہر قسم کے حرکت کرنے والے جانداروں کو، جن کو پانی نے ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا، اور تمام پردار جانوروں کو ان کی اقسام کے مطابق بنایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو برکت دے کر کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور سمندر کے پانی کو معمول کرو، اور پرندے زمین پر کثرت سے بڑھ جائیں۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی پانچواں دن۔ اور خدا نے کہا زمین جانداروں کو ان کی اقسام کے موافق، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں اور جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے مطابق، اور چوپایوں اور زمین پر رینگنے والوں کو ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور کل روئے زمین اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رینگتے ہیں حکومت کرے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس نے اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمول و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات پر جو زمین پر چلتی ہیں حکومت کرو۔ اور خدا نے کہا دیکھو میں ہر ایک بیجدار نبات جو زمین پر ہے اور سارے درخت جن میں ان کی اپنے قسم کا بیج ہے تمہیں دیتا ہوں، اور یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے سب چرندوں اور آسمان کے پرندوں اور سب کو جو زمین پر چلتے اور زندگی رکھتے ہیں، ان کو میں سارے سبز پودے کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے ان سب چیزوں پر جو اس نے بنائی تھی نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھی ہیں۔ بس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چھٹا دن۔ سو آسمان اور زمین اور ان کی کل آراستگی تمام ہوئی۔ اور خدا نے ساتویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا، اور اس نے ساتویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا۔ آمین۔
पाकलाम की पढ़ी और सुनी जाने पर खुदावंद की बरकत हम सब पर नाज़िल हो। हम दुआ मांगे। कादिर मुक़द्दर और अब्दी खुदा, तूने निहायत आला तरीके से सब कुछ तरतीब से बनाया। अब वक्त के पूरा होने पर तेरी मखलूक़ात तुझसे बढ़कर तेरी तारीफ करती है। जब फिर तुम्हारे पास का यानी अपने बेटे की कुर्बानी के जरिए अपनी उम्मत को निजात बख्शता है, वक्त है कि हम तेरी निहायत बड़ी मेहरबानी के लिए हमेशा तेरे शुक्रगुजार रहें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से। दूसरी तिलावत। ईमान में हमारे बाप इब्राहिम की कुर्बानी। शब-ए-इफ्तारी के मौका पर हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत तकवीन की किताब 22वां बाब 1 से 18 आयत तक। उस वक्त खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहिम, और उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूँ। उसने उसे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिसको तू प्यार करता है, ले और मोरिया की सरजमीन में जा और उसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, सौतनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 नौकरों को और अपने बेटे इसहाक को लिया और सौतनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जिसकी बाबत खुदा ने उसे फरमाया था रवाना हुआ। और तीसरे दिन इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाकर उस जगह को दूर से देखा। तब उसने अपने नौकरों से कहा, तुम यहाँ गधे के पास ठहरो, मैं और लड़का वहाँ जाएंगे और सजदा करके तुम्हारे पास वापस आएंगे। और उसने सौतनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और अपने हाथ में आग और छुरी ली और दोनों चल पड़े। तब इसहाक ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप। उसने जवाब में कहा, ऐ मेरे बेटे, क्या है? उसने कहा कि देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सौतनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा अपने वास्ते सौतनी कुर्बानी के लिए आप ही बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों इकट्ठे आगे बढ़े। आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम दुआ मांगे। सब ईमानदारों के बाप खुदा और इब्राहिम के साथ वादा किया था कि वो सब कौमों का बाप होगा। उन्हें मौत, उसी की मौत और जी उठने के जरिए इस वादा को पूरा कर दिया। तो दुनिया में अपनी चुनी हुई कौम को तरक्की देता है। बस एक हम शादमानी के साथ जिंदगी की दावत कबूल करके हमेशा तेरी इबादत करते रहें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से। आमीन। तीसरी तिलावत। आज की हमारी तीसरी तिलावत हलोज की किताब 14 बाब से बयान। उस वक्त खुदा ने मूसा से फरमाया, तो मेरे सामने क्यों चलाता है? बनी इसराइल से कह कि आगे को चले। तो अपना आसा उठा और समंदर पर हाथ बढ़ा और वो लोही से हो जाएगा। तो बनी इसराइल उसके बीच में से खुशकी पर गुजरे। और देखो, मैं मिस्रियों के दिलों को सख्त करूँगा और वो उनके पीछे आएंगे। और फरौन और उसके सब लश्करों और गाड़ियों और सवारों से मेरा जलाल जाहिर होगा। तो मिस्री जानेंगे कि दर हकीकत मैं ही खुदावंद हूँ।
जबकि मैं फ़िरौन और उसकी गाड़ियाँ और सवारों से जलाल पाऊंगा। और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएल के लश्कर के आगे आगे चलता था वहाँ से हट के उनके पीछे आ गया, और मोहम्मद का सोन भी उनके आगे से हटा और उनके पीछे आकर ठहर गया। और मिस्र के लश्कर और इस्राएल के लश्कर के दरमियान आया, और वह मिस्रियों के लिए स्याह बादल था, पर बनी इस्राएल के लिए रात को रोशनी देता था, तो वो रात भर एक दूसरे के नजदीक ना आ सके। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया, और खुदावंद ने तो मशरकी हवा के जरिए से जो रात भर चलती रही समुद्र के पीछे हटाया, यहाँ तक कि वो खुश्क ज़मीन हो गया और पानी दो हिस्से हो गया। और बनी इस्राएल समुद्र के बीच खुश्की पर गुजरे, और उनके दाहिने और बाएं पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने इनका पीछा किया, और उनके पीछे ही फ़िरौन के सब घोड़े और गाड़ियाँ और सवार समुद्र के बीच में आए। और सुबह के पहर में खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की, और मिस्रियों के लश्कर को घबरा दिया, और उनकी गाड़ियों के पहिए रोके कि वो मुश्किल से चलती थी। तो मिस्रियों ने कहा, इस्राएल के सामने से भाग चलो, क्योंकि खुदावंद उनके लिए मिस्रियों को मारता है। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा कि मिस्रियों पर और उनकी गाड़ियों और सवारों पर पानी कर आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया, उफरते वक्त समुद्र अपनी असली जगह को लौटा और भागते हुए मिस्र को आ मिला। और खुदावंद ने मिस्र को समुद्र के बीच में गर्क किया, और पानी वापस आया, और फ़िरौन के सब लश्कर की गाड़ियाँ और सवारों को जो उनके बीच समुद्र के बीच में आए थे ढांक लिया, और उनमें से एक भी बाकी ना रहा। और बनी इस्राएल समुद्र के बीच खुश्की पर चले, और पानी उनके दाहिने और बाएं दीवार की तरह था। सो उस दिन खुदावंद ने बनी इस्राएल को मिस्रियों के हाथ से खलासी बख्शी, और इस्राएल ने समुद्र के किनारे पर मिस्रियों की लाशें देखी। और इस्राएल ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्र पर जाहिर की देखी, तो लोग खुदावंद से डरे और उस पर और उसके हाथों मूसा पर ईमान लाए। उस वक्त मूसा और बनी इस्राएल ने नुसरत का नगमा गाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेहरबान बाप, इस ज़माने में भी हम तेरे कदीम मोजज़ों की अज़मत महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक ही कौम थी जिसे तूने गुलामी की जगह से रिहाई दी। अब बपतिस्मा के जरिए यही रिहाई सब कौमों को अता करता है। बख्श दे कि दुनिया भर के लोग इब्राहिम की औलाद के साथ मिलकर चुनी हुई कौम का रुतबा हासिल करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। चौथी तलावत। खुदावंद तेरे फिदिया देने वाले ने अपनी शफ़क़त से तुझ पर रहम किया है। आज की हमारी चौथी तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका जबल बाब 5 ta 14 आयत तक। चुनाचे अब तेरा हालक ही तेरा खावत है, जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है, और तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कदूस है, जो सारी ज़मीन का खुदा कहलाएगा। क्योंकि खुदावंद ने तुझको मुतलका और दिल अर्जुदा औरत की मानित बुलाया है। तेरा खुदा फरमाता है कि जवानी की बीवी क्यों कर छोड़ी जाए। मैंने एक लहजा के लिए तुझे जुदा किया, पर बड़ी मेहरबानियों से तुझको समेट दूंगा। गज़ब की शिद्दत में मैंने अपना मुँह तुझसे लहजा भर के लिए छुपाया,
मगर अपनी शफ़क़त से तुझ पर रहम करूँगा। यूँ खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला फरमाता है, क्योंकि ये बात मेरे नज़दीक वैसी होगी जैसी नूह के दिनों में, जब मैंने कसम खाई कि नूह का सा सैलाब ज़मीन पर फिर कभी ना लाऊंगा। इसी तरह मैंने कसम खाई कि तुझसे नाराज़ ना होऊंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। अगरचे पहाड़ मिले और कीड़े लरज़ा हो तो भी मेरी रहमत तुझसे जाती ना रहेगी और मेरी सलामती का अहद जुम्बश ना खाएगा। यूँ खुदावंद तेरा रहम करने वाला फरमाता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हम दुआ मांगे। मैं कादिर मुतलक और अपनी खुदा अपनी चुनी हुई कौम को तरक्की देकर अपना जलाल ज़ाहिर कर। पहले ज़माने में तूने अपने लोगों का ईमान देख कर उनके साथ वादा किया था। वक्त कि हम तेरी पाक कलीसिया ही में इस वादे को पूरा होता देखें। उसी हमारे खुदा के वसीले से पाँचवीं खुदा। मेरे पास आओ तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी और मैं तुमसे अभी अहद बांधूंगा। हमारे लिए आज की पांचवी तिलावत इशाया नबी का सहीफा 55 बाब 1-5 खुदावंद फरमाता है, ऐ तमाम प्यासो पानी के पास आओ और जिसके पास नकदी ना हो आओ गला खरीदो और खाओ। आओ और बगैर नकदी के और बेकीमत मैं और दूध खरीदो। तुम क्यों उस चीज़ के लिए जो रोटी नहीं नकदी खर्च करते हो और उस चीज़ के लिए जो सैर नहीं करती मुशक्कत उठाते हो। तुम गौर से मेरी बात सुनो और अच्छी चीज़ खाओ और तुम्हारी जान में रादानी से लज्जत उठाएं। अपने कान झुकाओ और मेरे पास आओ, सुनो तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं तुमसे अभी अहद बांधूंगा, यानी दाऊद की सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। देख मैंने उसे कौमों के लिए गवाह और उम्मतों के लिए पेशवा और फरमारुआ मुकर्रर किया। देख तू एक कौम को जिसको तू ना जानता था बुलाएगा और जो कौम तुझे ना जानती थी वो खुदावंद तेरे खुदा और इस्राएल के कदूस की खातिर तेरे पास दौड़ती आएगी। इसलिए कि उसने तुझे जलाल बख्शा। जब तक के खुदा पाया जाए तुम उसको तलाश करो और जब तक के वो करीब है उसको पुकारो। शरीर अपनी राह को और हताकार अपने ख्यालात को तर्क करे और खुदावंद की तरफ रज्जू करे तो वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ फेरेगा, क्योंकि वो कसरत से माफ़ करता है। क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जैसे फलाक ज़मीन से ऊंची है वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद हैं। और जिस तरह से आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और फिर वहाँ वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती और उसकी शादाबी और रोईगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे। ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा, बल्कि जो मैं चाहूँ उसको पूरा करेगा और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें कामयाब होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। कादिर मुतलक अब्दी खुदा, सिर्फ तुझ ही पर हमारी उम्मीद है। तूने नबियों के ज़रिए उन वेदों को बयान किया है जिनको हम आज याद करते हैं। हमारी मदद कर ताकि हम तेरे वफादार बने रहें, क्योंकि तेरी ही मर्जी है। तेरी ही मर्जी से हम नेकी करने के काबिल होंगे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से शबी खुदावंद। आज के इस मुबारक वक्त के मौका पर हम सब के लिए छठी तिलावत।
बारूक नबी की किताब उसका 3रा बाब उसकी 9वीं से 15वीं और 30वीं आयत से लेकर 4थे बाब की 4थी आयत तक। और इसमें ये लिखा है, ए इस्राएल अहकाम हयात सुन, कान लगा कर अकल सीख। ये किस तरह ए इस्राएल, ये किस तरह होगा कि तू दुश्मनों के मुल्क में है और मुसाफरत की सरजमीन में मुरझा जाता है और लाशों की तरह नापाक हो गया है और आलमे असफल के बाशिंदों के साथ शुमार किया जाता है। तूने हिकमत के चश्मे को तरक कर दिया है और अगर तू खुदा की राह में चलता है तो तू ज़मानों के अंजाम तक सलामती से बसा। सीख अकल कहाँ है और कुव्वत कहाँ है और अक्लमंदी कहाँ है, ताकि तू ये भी सीखे कि अयाम की दराजी और ज़िंदगी कहाँ है और आँखों का नूर और सलामती कहाँ है। किसने उसकी जगह पाई और कौन उसके खजानों में पहुँचा, मगर जो सब चीज़ों से वाकिफ़ है वही उसको जानता है। उसी ने अपनी दानिश से उसको पा लिया, जिसने ज़मीन को हमेशा के लिए कायम किया और उसे चुपायों से भर दिया। जो नूर को नाज़िल फरमाता है तो वो तलू होता है, जो उसे बुलाता है तो वो कांपते कांपते उसकी अतायत करता है। सितारे अपनी बारियों में चमकते हैं और खुशनुमा हैं। वो उनको बुलाता है तो वो कहते हैं कि हम हाजिर हैं और अपने खालिक के लिए खुशी से दरख्शां हैं। यही हमारा खुदा है, कोई और उसके बराबर ख्याल नहीं किया जाता। उसने हिकमत की राह को पाया है और उसे अपने बंदे यकूब और अपने महबूब इसराइल के सुपुर्द कर दिया है। बात उसके कि वो ज़मीन पर नजर आई और आदमजात के दरमियान चली फिरी। पाकलाम के पढ़े उसने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेहरबान बाप खुदा, तूने सब लोगों को निजात के लिए बुलाकर अपनी कलीसिया को तरक्की दी है। हमारी दुआएं कबूल कर और हमेशा अपने बंदों की हिफाजत कर, जिन्हें तूने बपतिस्मा के पानी के जरिए पाकीज़गी बख्शी है। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से साथ इस तलावत के बाद ग्लोरिया गाया जाएगा और चर्च की बैल बजाई जाएगी। मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूंगा और मैं तुम्हें एक नया दिल अता करूंगा। सातवीं तिलावत हिजकिय्याह नबी की किताब 36 बाब 16 से 28 आयत। उस वक्त मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ए इब्न बशर, इस्राएल का घराना जब अपनी ज़मीन में बसते थे तो उन्होंने अपनी रविश और अपने अमाल से उसको नापाक कर दिया। तो उस खून के सबब से जो उन्होंने मुल्क में बहाया, मैंने अपना कहर उन पर उंडेल दिया। और जो कि उन्होंने उसे अपने बुतों से नापाक कर दिया, इसलिए मैंने उनको कौमों के दरमियान परगंदा कर दिया और वो मुल्कों में आवारा हो गए। मैंने उनकी रविश और उनके अमाल के मुताबिक उनकी अदालत की। और जब वो उन कौमों के दरमियान पहुँचे जिन जिन में वो रह के गए थे, तो उन्होंने मेरे कदूस नाम को दाग लगाया, क्योंकि उनकी बाबत कहा जाता था कि खुदावंद के लोग हैं। वो भी इनको इसकी सरजमीन से निकालना चाहता है। लेकिन मुझे अपने कदूस नाम के बारे में अफसोस हुआ, जिसको इस्राएल के घराने ने उन कौमों के दरमियान जिनमें वो रह के गए थे दाग लगाया। इसलिए तो इस्राएल के घराने से कह दे, मालिक खुदावंद यूं फरमाता है
کہ میں تمہاری خاطر یہ نہیں کرتا، اے اسرائیل کے گھرانے، بلکہ اپنے قدوس نام کی خاطر جس کو تم نے ان قوموں میں جن کے درمیان تم گئے داغ لگایا۔ بس میں اپنے عظیم نام کی جو قوموں میں داغدار کیا گیا ہے، ہاں جن کے درمیان تم نے اس کو داغ لگایا، تقدیس کروں گا۔ جب ان کے سامنے تمہارے ذریعہ سے میری تقدیس ہوگی تو قومیں جان لیں گی کہ میں ہی خداوند ہوں۔ مالک خداوند کا فرمان یوں ہی ہے، کیونکہ میں تم کو قوموں کے درمیان سے نکال لوں گا اور سب ملکوں میں سے جمع کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب میں تم پر پاک پانی چھڑکوں گا اور تم اپنے ہر داغ سے پاک صاف ہو جاؤ گے۔ میں تم کو تمہارے تمام بتوں سے پاک کر دوں گا اور میں تم کو ایک نیا دل بخشوں گا اور تمہارے باطن میں نئی روح ڈال دوں گا اور تمہارے بدن سے پتھر کا دل نکال لوں گا اور تم کو گوشت کا دل عطا کروں گا اور تمہارے باطن میں اپنی روح ڈال دوں گا اور میں ایسا کروں گا کہ میرے قوانین پر چلو گے اور میری قضاؤں کو حفظ کر کے ان پر عمل کرو گے اور تم اس ملک میں بسو گے جو میں نے تمہارے باپ دادا کو عطا کیا تھا، اور تم میری امت ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ Hey
पुरमसरत मौका पर हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 6 बाब 3 ता 11 आयत। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यीशु में इस्तबाग पाया तो मौत में इस्तबाग पाया। हम मौत में इस्तबाग पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसा मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नई जिंदगी में कदम मारें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाफत से उसके साथ पेवस्ता होंगे, तो उसकी क़यामत की मुशाफत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। चुनांचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि गुनाह का बदन नीस्त हो जाए, ताकि हम आगे को गुलाम के गुलाम ना रहें। क्योंकि जो मर गया है वो गुनाह से बरी किया गया है। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ जिंदा भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं और ना फिर मौत के ज़ेरे इख्तियार ही होने का है। क्योंकि उसका मरना कतल गुनाह की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा मगर खुदा की निस्बत मसीह यीशु में जिंदा समझो। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।